قادری راتاں نو جاگدے نے اس لیے نہیں کہ ہمیں خدا کی حضوری ملے، اس لیے کہ نواں گورا مل جائے. ہے جی اے بھائی جی 5000 پڑے کی کرتے رہے. بائبل مقدس کہتی ہے اگر تیرا دہنا ہاتھ کرتا تو بھائی کو نہ پتا چلے کیتا کی ہے تے کی کرتے ہیں پوری عوام نو پورے لوکاں نو دس رہے ہوندے نے. ہاں جی اسی 5000 دی انہاں دی ہیلپ کیتی ہے. جڑے گورے تے کالے لئی پھردے نے انہاں کولوں پوچھ بھی بہتی ہونی ہے، کیونکہ خدا کے لوگ لالچی، خدا کے لوگ زر دوست، پیسے کے دوست، اسی لیے ساڈے کو نہ گورا ہے تے نہ کوئی کالا ہے. اللہ ہاتھ نے لکھیا جو ہے وہ مطلب نہیں پتہ لگیا لیکن کام پہلے شروع ہو گیا. گنہگار کی دعا بھی خدا کے حضور نفرت انگیز ہوتی ہے. تو لوگ کی کہنے نے بھائی یہ بڑ بڑ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، یہی تو ہے جو الہوں کی روح ہے. تو کئی بار ہماری کمر کی ہڈی کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ساڈے گوڈے بھیڑ کرتے ہیں، ہے نا. تے جے کسی نو آکھیے بھائی جی توبہ کرو، پادری صاحب گوڈیاں دی بھیڑ دا توبہ نہ کی کر لگے. میرے عزیزو آج جب ہم ان برتنوں کو ناپاک کاموں کے لیے، ناپاک چیزوں کو ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں تو پھر خدا کا ہیبت ناک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے. جو ہیبت ناک ہاتھ ہمارے حق میں نہیں ہوتا بلکہ ہمارے خلاف ہوتا ہے. اگرچہ بادشاہ بھی ہو تو وہ تب بھی نہیں بخشتا، اگرچہ نبی ہو تب بھی وہ بخشتا نہیں، اور اگرچہ ہم ہوں تب بھی وہ بخشے گا نہیں. جب ہم ان برتنوں کا استعمال درست طریقے سے نہیں کرتے تو پھر خدا کا ہیبت ناک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، اور جب ہیبت ناک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے شان و شوکت جاتی ہے، اس کی وجہ سے مال و دولت چلی جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر بھی یہی ہوا. پڑھیے گا بھائی آگے کیا ہوا. تب بادشاہ کا چہرہ کا رنگ اڑ گیا اور اس کے خیالات اس کو پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے. ہاں جی میں نے آپ کو کیا کہا، جب ہیبت ناک ہاتھ ظاہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ظاہر ہونے کے ساتھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں ہمارے جسم میں جنم لیتی ہیں. اب یہ ہیبت ناک ہاتھ ظاہر ہوا تو سب سے پہلا کام کیا ہوا، بادشاہ کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، یعنی کہ اس کے مہروں کے اندر مسئلہ آ گیا. آمین. اس کے مہروں کے اندر مسئلہ آ گیا، اس کے جوڑ جو کمر کی ہڈی کے جوڑ، ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں وہ ڈھیلے ہو گئے. اور جب یہ کمر کی ہڈی کے جوڑ ڈھیلے ہو جائیں تو کئی بار انسان سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا بلکہ جھک کر رہتا ہے. آمین. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے اس کو اس لیے بیماری دی ہے تاکہ جو اس کی عقل ہے نا وہ ٹوٹ جاتے کو باہ ہو جائے، انہوں پتہ لگے کہ آگے چھکڑا ہے تو کہ آگے اکڑا ہے. آمین. میرے عزیزو بادشاہ کے کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور جب جوڑ ڈھیلے ہو گئے تو یقینی بات ہے کہ وہ کبڑا یا کبڑی حالت میں ہو گیا ہوگا، کیونکہ وہ سیدھا ہونے کی حالت میں نہیں رہا. اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ہو گئے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے جی پڑھیے گا بھائی. اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ہاں جی اس کے گھٹنے کیا ہوا، ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. میرے عزیزو کئی بار ہماری کمر کی ہڈی کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، کبھی ساڈے گوڈے بھیڑ کرتے ہیں، ہے نا. تے جے کسی نو آکھیے بھائی جی توبہ کرو، پادری صاحب گوڈیاں دی بھیڑ دا توبہ نہ کی کر لگے، ہے کہ نہیں. تے ایتھے کی ہے خدا آپ کے گھٹنوں کے اندر بیماریاں پیدا کرتا ہے، خدا آپ کی کمر کی ہڈی کے اندر بیماریاں پیدا کر دیتا ہے. آمین. کیونکہ ہم نے ان برتنوں کو ناپاک عمل کے لیے، ناپاک کاموں کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے، اور خدا کا ہیبت ناک ہاتھ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے. اور جب خدا کا ہاتھ ہمارے خلاف ہو جائے تو پھر کوئی دعا بچاتی نہیں ہے، پھر کوئی روزہ بچاتا نہیں ہے، پھر کوئی دعا کام میں نہیں آتی ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا خدا گنہگار کی دعا نہیں سنتا، اور گنہگار کی دعا بھی خدا کے حضور نفرت انگیز ہوتی ہے. آمین. اور میرے عزیزو یہاں لکھا ہے کہ جب وہ ہاتھ ظاہر ہوا ہے، اللہ ہاتھ نے لکھیا جو ہے وہ مطلب نہیں پتہ لگیا لیکن کام پہلے شروع ہو گیا.
पहले इसका मतलब ये हुआ कि हैबत नाकात जब जाहिर होता है तो हमारी जिंदगी में हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, बात नहीं खुलती, बात बाद में खुलती है। आमीन। और उसने क्या किया, वो परेशान हुआ, उसने कश्तियों को बुलाया, नजूमियों को बुलाया, जितने फाल निकालने वाले थे सबको बुलाया और चाहा कि इस दीवार के ऊपर लिखी हुई इबारत का मतलब जान सके। मेरे अजीजों, गौरतलब बात है, लिखा किसने है? लिखा किसने है? उंगली किसकी है? लिखिया खुदा ने, ते पढ़ने वाला भी तो कोई खुदा दा ही चाहिए ना। आमीन। लिखा खुदा ने है तो कोई जादूगर पढ़ सकता है? लिखा खुदा ने है तो कोई फाल निकालने वाला पढ़ सकता है? लिखा खुदा ने है तो कोई कश्ती कोई और बंदा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। पढ़ेगा वही जेड़ा रब दा बंदा होएगा। हालेलुया। इसी तरह मेरे अजीजों, कई बार कई सालों से हम मुश्किल और परेशानियों में फंसे रहते हैं और हमें पता नहीं चलता ये परेशानी, ये वजह, ये सबब क्या है। क्योंकि हमने रफाकत भी शायद ऐसे कदम से रखी होती है जो शायद हमें गाइड नहीं कर सकते, जो शायद हमें बता नहीं सकते कि इस मसले का हल क्या है। आमीन। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के लिखे को वही जान सकता है जिसमें इलाहों की रूह काम करती है। आमीन। आमीन। तो लोग क्या कहते हैं, भाई ये बुढ़ बुढ़ पता नहीं क्या करते हैं, यही तो है जो इलाहों की रूह है। हालेलुया। यही तो है जो खुदा की रूह है जो उसके लोगों में बसती है। आमीन। और फिर आगे क्या हुआ, पढ़िएगा भाई। तब बादशाह के तमाम हकीम जाहिर हुए जी, लेकिन ना उसका सब के सब आए हैं बादशाह के बुलाने पर, क्योंकि बादशाह ने बहुत बड़ा इनाम भी रखा है। सब हाजिर हुए हैं और किसी से वो बात बारत पड़ी नहीं गई है। अब उसके बाद जब ये काम हुआ तो बादशाह और परेशान हो गया। मेरे अजीजों, फिर हुआ ये कि बादशाह की माँ कहने लगी कि बादशाह, तेरे बाप के दौर में एक बंदा था जिसमें इलाहों की रूह काम करती थी और वो तेरे बाप के खास बंदों में शुमार होता था। उसको बुला, वो तुझे बताएगा इसका मतलब क्या है। मेरे अजीजों, जब हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मकसद हल नहीं होता, जब हमारी जिंदगी के अंदर हमारी परेशानी का हल नहीं होता, तो फिर दूसरे लोग मशवरा देते हैं। कई बार तो वो मशवरा सही होता है तो कई बार पुट्ठा होता है। आमीन। बादशाह की माँ ने उसको सही मशवरा दिया। आमीन। सही मशवरा दिया और सही मशवरा देने पर हुआ क्या कि बादशाह ने उसे बुलाया जिसके अंदर इलाहों की रूह काम करती है। पढ़िएगा भाई। तेरी ममलकत में एक शख्स है जिसमें कदूस इलाहों की रूह है और तेरे बाप के अयाम में नूर और दानिश और हिकमत इलाहों की हिकमत की मानी। 2 आयतें आगे पढ़े, छोड़ दें। क्योंकि उसमें एक फाजल रूह है, उसमें एक फाजल रूह है, अक्लमंदी की रूह है। आमीन। उसके अंदर एक फाजल हिकमत वाली रूह है, वो तुझे सब कुछ बता सकता है। जी आगे पढ़िएगा। क्योंकि उसमें एक फाजल रूह और दानिश और अकल और ख्वाबों की ताबीर और उक्दा कुशाई और हल मुश्किलात की कुव्वत थी। उसमें जो है हिकमत है खुदा की जो काम करती है। आमीन। उसमें अकल है जो खुदा की काम करती है। आमीन। आमीन। और वो ख्वाबों की ताबीर भी बताता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, कई बार लोग मुझे ख्वाब सुनाते हैं तो कई बार ख्वाबों की कई लोगों को कई ख्वाब को समझ नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि ख्वाबों की ताबीर किसी किसी को तो खुदा ने दी है। आमीन। आमीन। और फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि उसको बुलाया गया जिसके अंदर फाजल रूह थी और उसका नाम था दानियल नबी। जी पढ़िएगा भाई। तब दानियल बादशाह के हुजूर हाजिर किया गया। बादशाह ने दानियल से पूछा कि तू वही दानियल है जो यहूदा के असीरों में है। 6 आयतें छोड़ के आगे पढ़ेंगे। तब दानियल ने बादशाह को जवाब दिया कि तेरा इनाम तेरे ही पास रहे। उन्होंने कहा बादशाह मैनू नाम की लोड़ नहीं है, क्योंकि खुदा के लोग लालची, खुदा के लोग जरदोस्त, पैसे के दोस्त, इसीलिए साढ़े को ना गोरा है ना काला है। आमीन। इसीलिए नौकरी कर रहे हैं। आमीन। तो जो जरदोस्त हैं उन्हें गोरा भी है तो उन्हें को काला भी है।
एक महीने एक जगह खरीदते ने ते दूजे महीने दूसरी जगह खरीदते ते तीसरे महीने ते कई ऐसे भी पादरी ने किराए ते रहंदे ने, कहंदे ने गोरिया को पैसा आंदा रहे ते चलता रहेगा। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के लोग जरदोस्त नहीं होते, खुदा के लोग लालची नहीं होते। आमीन। जो ये काम करते हैं, जिन्हां दे जेड़े गोरे ते काले लई फिरदे ने, इन्हां कोलों पुछ भी बहुती होनी है। आमीन। एक एक पैसे का जवाब दिया जाएगा, एक एक पैसे का पूछा जाएगा, हाँ भाई कितने लाया? लाख रुपया आ जाए तो 20,000 ला देंगे ने, 80,000 अपनी जेब च, ते फिर की करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, है भाई जी 5,000 फड़े की करते हैं? बाइबल मुकद्दस कहती है अगर तेरा दाहिना हाथ करता तो तेरे बाएं को ना पता चले कीता की है, तो की करते हैं? पूरी आवाम ਨੂੰ पूरे लोगों ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 5,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5,000 ਦੇ ਬਜਾਏ 50,000 आ जाता है। आता क्या नहीं आता? आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन मेरे अजीजों, इंसान जितना हो सके अपने आप को पाक रखे, अपने आप को बचाए इन कामों से। आमीन, आमीन। आज ये कारोबारी सिलसिला चल चुका है, ये कारोबारी, ये बिजनेस का सिलसिला चल चुका है। खिदमत नहीं हो रही, बल्कि बड़े बड़े इज्तिमा इकट्ठे करके गोरों को खुश किया जा रहा है, खुदा को नहीं किया जा रहा है। आमीन, आमीन। कभी अमेरिका तो कभी किसी जगह तो कभी किसी मुल्क तो कभी किसी मुल्क तो। हाँ जी, हमारे लोग रात रात भर जागते हैं, क्यों? रब दी हजूरी च नहीं नहीं, गोरे नु घेरन दी चक्कर च। सारे पासबान, सारे पादरी रात नु जागते हैं, इसलिए नहीं कि हमें खुदा की हजूरी मिले, इसलिए कि नवा गोरा मिल जाए। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं हमारे पास भी एक गोरा है, आमीन, लेकिन हमारा गोरा मशरकी है, कोई यूरोप तो नहीं है। आमीन। मशरिक के लोग भी तो गोरे हैं ना, कि नहीं है भाई? तो यीशु मसीह मशरिकी था। आमीन, आमीन। यीशु मसीह का भी रंग गोरा चिट्टा सी। आमीन। को कालिया जो फ्रीकियां जो नहीं आया सी वो। आमीन। हमारा गोरा भी एक है, यानी यीशु मसीह जो मशरकी। आगे पढ़िएगा भाई, क्या हुआ? उसने कहा बादशाह, मुझे तेरे तख्त की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे तख्त की कोई लालच नहीं, तू अपने पास रख, जो खुदा का काम है मैं वो करूंगा। अब सुन आगे खुदा क्या कहता है, जी पढ़िएगा भाई। और वो नविश्ता ये है कि मिने मिने तकीलो। हाँ जी, वो नविश्ता जो तूने दीवार पे लिखा हुआ देखा बादशाह, वो ये है मिने मिने तकीलो फरसी। जी आगे पढ़िए। और इसके मायने ये हैं, मेरे अजीजों, ये जो जुबान लिखी गई है, ना ये इब्रानी है, ना लतीनी है, ना यूनानी है, बल्कि ये जुबान आसमानी है। आमीन। तो जो आसमान के वासी हैं वो इस जुबान को पढ़ सकते हैं, दूसरे नहीं पढ़ सकते। आमीन। और दानियल आसमान का वासी। हालेलुया, हालेलुया। और दानियल ने कहा, बादशाह मैं इस इबारत को पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरे आका की जुबान है, ये मेरे खालिक की जुबान है, ये मेरे खुदा का लिखा हुआ है। आमीन। और उसने कहा बादशाह जो तूने लिखा हुआ देखा, इसका मतलब ये है, अब सुन ले। जी पढ़िएगा भाई। इसके मायने ये है कि मिने यानी खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब किया। मिने मिने मतलब खुदा ने तेरी ममलकत का, जो खुदा ने तुझे दी थी, उसका हिसाब किया। इसलिए हिसाब किया क्यों? क्योंकि तूने पाक बर्तनों के अंदर, जरा गौर कीजिएगा, पाक बर्तनों के अंदर नापाक अमल किया है, इसलिए खुदा ने तेरी ममलकत का हिसाब किया है। और फिर आगे क्या हुआ? हिसाब किया और उसे तमाम कर डाला। हिसाब किया और तेरी ममलकत को तमाम कर डाला। जी आगे पढ़िएगा। तकील यानी तू तराजू में तोला गया। तकील यानी तू तराजू में खुदा ने तुझे तोला और तू कम निकला। जी आगे। फरीस यानी तेरी ममलकत मुनकसम हुई और मादियों और फरीस यानी तेरी जो ममलकत है, तेरी सल्तनत जो है वो तकसीम होगी और वो मादी और फारसियों के पास चली जाएगी। जी आगे पढ़िए। तब बेलशस्सर ने हुक्म किया और दानियल को अरगवानी। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब ये बात बादशाह को पहुंची, उसी रोज गौर से कीजिएगा, उसी रोज बादशाह का कत्ल हो गया।
उसी रोज बादशाह का कत्ल हो गया। आखिरी आयत पढ़ते हैं इसी बात की। उसी रोज बादशाह का कत्ल हो गया, जरा सुनिएगा। और दादा मादी ने 62 बरस की उम्र में उसकी सल्तनत हासिल की। ऊपर से एक आयत। तब बेलशस्सर ने हुक्म किया, दानियल को अरगवानी खिलकत पहनाया गया और जरीन तोग उसके गले में डाला गया और मुनादी कराई गई कि वो ममलकत से तीसरे दर्जा का हाकिम हो। उसी रात बेलशस्सर कर्जियों का बादशाह कत्ल हुआ। उसी रोज क्या हुआ? बेलशस्सर का कत्ल हो गया। मेरे अजीजों, जब खुदा बयान करता है, बताता है, तो वो हर सूरत मुमकिन हो जाता है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, सजा किस चीज की मिली उसको? पाक बर्तनों में नापाक अमल करने की। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम भी, ये हमारे बदन बर्तन की मानिंद है। आमीन। खुदा ने इन बर्तनों को पाक बनाया है इसलिए कि ये खुदा के घर में इस्तेमाल हो। आमीन। और जब हम इन बर्तनों को नापाक अमल के लिए इस्तेमाल करते हैं, नापाक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शराब पीना, जिसमें झूठ बोलना, जिसमें गालियां निकालना, जिसमें धोखाधड़ी करना, जिसमें तमाम का जिस्मानी काम करना, जो इस बदन को नापाक करते हैं। याद रखें, खुदा ने इस बदन को पाक बनाया। अगर इसे आप पाक नहीं रखेंगे तो खुदा आपका भी हिसाब करेगा। आमीन। खुदा आपका भी हिसाब करेगा और आप भी तराजू में तोले जाएंगे और कम निकलेंगे। और यकीन जाने के खुदा फिर आपको शायद जिंदा भी रहने ना दे। मेरे अजीजों, आज इस बात का हमें सोचो विचार करने की जरूरत है कि इन बदनों के साथ जो खुदा की अमानत है, ये बदन जो खुदा के हैं, ये बर्तन जो खुदा के हैं, जो हमारे बदन पाक हैं, हम इनके अंदर कौन कौन सी चीज डाले हुए हैं, इन बदनों के अंदर कौन कौन सी चीजें रखे हुए हैं, आज उन चीजों को तर्क करने की जरूरत है। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो कोई अपने गुनाहों का इकरार करके उन्हें तर्क करता है, उस पर खुदा की रहमत हो जाती है। आमीन। और जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता, वो हरगिज़ कामयाब ना होगा। आज अपनी गलतियों गुनाहों का खुदा के हुजूर इकरार करें। याद रखें, अगर बीमारी है तो खुदा के हैबतनाक हाथ की वजह से है तो चली जाएगी, जो आज तक दुआ और रोजों से नहीं गई। आज अपनी जिंदगियों को खुदा के लिए खाली करें। आमीन। अपने आप को, अपने इन बदनों को, इन बर्तनों को खुदा के लिए पेश करें और खाली करें, इन बदनों को पाक करें, ताकि खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर अजीब काम करे। आइए हम अपने सरों को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।